بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو ناول ہے دی میٹامورفسس، اس میں جو گریگر سیمسا ہے یہ پروٹیگونسٹ ہے، مین کیریکٹر ہے۔ اسے اگر آپ کسی حد تک فرانز کافکا سمجھیں تو غلط نہ ہوگا۔ جس طرح اس ناول میں گریگر سیمسا بیمار ہو کر بگ میں چینج ہو جاتا ہے اور سارے گھر والے اسے اگنور کرتے ہیں، اسی طرح فرانز کافکا جو تھا وہ ٹی بی کا مریض تھا اور بہت سے اس کے اپنے رشتہ دار، اس کی جو گرل فرینڈس تھیں، اس کے جو اپنے تھے، اسے چھوڑ گئے تھے اس کی بیماری کی وجہ سے۔ چلے ناول سٹارٹ کرتے ہیں۔ گریگر سیمسا جو کہ ایک ٹریولنگ سیل مین ہے، جب وہ نیند سے بیدار ہوتا ہے تو محسوس کرتا ہے کہ جیسے وہ ایک حشرے میں، بگ میں، بیٹل میں، کھٹمل، پسو جسے کہتے ہیں، اس میں چینج ہو گیا۔ میٹامورفسس ایک سائنٹیفک ٹرم ہے جو کہ ایک حشرے کے لیے، پتنگے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ عام طور پر اسے تتلی کا جو انڈوں سے نکل کر لاروے سے تتلی بننے کا جو لائف سائیکل ہے، اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہاں پر اسے ایک انسان کا ایک بگ میں چینج ہونا، ایک انسیکٹ میں چینج ہونے کے لیے استعمال کیا گیا۔ یعنی کہ جب انسان جو ہے اکنومیکلی ویک ہو جاتا ہے، وہ اس قابل نہیں رہتا ہے کہ وہ ارن کر سکے، وہ مینٹلی اور فزیکل ٹھیک نہیں ہوتا، جب وہ بیمار ہو جاتا ہے تو اس کی اہمیت معاشرے میں، سوسائٹی میں، گھر میں کوئی نہیں رہتی، بلکہ اتنی ہی رہ جاتی ہے جتنی ایک بگ کی ہوتی۔ وہ اپنے کمرے کے ارد گرد دیکھتا ہے گریگر سیمسا، جو کہ اس کو بالکل نارمل محسوس ہوتا ہے۔ وہ دوبارہ سونے کا فیصلہ کرتا ہے، کہتا ہے کہ میں سو جاتا ہوں، پھر معاملہ شاید ٹھیک ہو جائے۔ وہ سب کچھ بھولنا چاہتا ہے، ایسے ہی کرتا ہے انسان جب پریشان ہو، کوئی بات ذہن میں ہو تو انسان کہتا ہے کہ سو جاؤ، اپنے دھیان کو ادھر ادھر لگا دو تاکہ وہ چیز آپ کے ذہن سے نکل جائے۔ وہ سب کچھ بھولنا چاہتا ہے جو کہ اس کے ساتھ ہوا، یعنی وہ ایک انسان سے ایک بگ میں چینج ہو گیا، ایک انسیکٹ میں چینج ہو گیا۔ وہ کروٹ بدلنے کی کوشش کرتا ہے، جنہوں آپ پنجابی چ کہنے پاسا لینا۔ جب وہ کروٹ بدلنے کی کوشش کرتا ہے، اپنی پشت کے سخت پن کی وجہ سے کروٹ نہیں لے پاتا۔ اس کی بیک جو ہے بہت زیادہ سخت ہو گئی ہے اور وہ ہل نہیں پا رہا، کیونکہ اب وہ سو نہیں پاتا تو وہ اپنے کمرے کا جائزہ لیتا ہے۔ اب اس سے سویا نہیں جا رہا، اب وہ کیا کرتا ہے کہ وہ اپنے کمرے کو ادھر ادھر سے دیکھنا شروع کر دیتا ہے کہ کمرے کا جائزہ لے، جو کہ اس کو پہلے کی نسبت چھوٹا محسوس ہوتا ہے۔ پہلے تو کمرہ تو وہی ہے، لیکن اسے اب وہ کمرہ کافی چھوٹا دکھائی دے رہا ہے۔ وہ دیوار سے لگی ہوئی ایک میگزین سے کاٹ کر فریم کی گئی عورت کی تصویر کو دیکھتا ہے۔ ایک عورت کی تصویر ہے، خوبصورت عورت ہے، میگزین سے نکال کر اسے فریم کر کے دیوار پر لگایا گیا ہے۔ اپنی ملازمت کے متعلق سوچتا ہے، وہ اپنی نوکری کے متعلق سوچتا ہے، کیسا نوکری ہے میری، میں صبح 4 بجے کی ٹرین میں جاتا ہوں، شام کو 6 بجے گھر آتا ہوں، سو جاتا ہوں، صبح اگلے دن پھر، اور 5-6 سال ہو گئے کہ ایسے ہی یہ ملازمت کر رہا ہے۔ ٹریولنگ سیل مین ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ، ایک شہر سے دوسرے شہر جا کر مال لے جا کر بیچتا ہے۔ وہ ایک ایسا سیل مین ہے جو کہ اپنی اشیاء دور دراز سفر کر کے بیچتا ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا۔ وہ اس ملازمت سے نفرت کرتا ہے کیونکہ اس کو صبح سویرے اٹھ کر دور دراز کا سفر طے کرنا پڑتا ہے، جس کے اکتاہٹ کا باعث ہے۔ صبح اٹھنا بندہ کہتا ہے یار کی یہ تکلیف کیڑی یہ کم لگ گیا، صبح اٹھنا، جب رات کو دیر سے سونا ہے تو صبح جا کیسے آئے گی۔ تو یہ کافی لوگوں کو پرابلمز ہوتی ہیں، صبح اٹھنا ان کے لیے جو ہے بڑا تکلیف دہ ہوتا ہے۔ اور پھر تب ایسا ہوتا ہے جب انسان ریسٹ ہی نہ کرے، وہ 5 سال ہو گئے ہیں ایسے ہی کام کر رہا ہے تو اکتا تو جاتا ہے بندہ۔ دفتر میں گریگر کا چیف جو ہے وہ بڑا ظالم ہے، اس کا جو آفیسر ہے بڑا ظالم ہے۔ گریگر اپنی ملازمت کو چھوڑنا چاہتا ہے، وہ دفعہ مارنا چاہتا ہے، کہنا دفعہ مارو، کی کرنی نوکری کر کے اس طرح دی جیڑی اذیت ہی نہیں زیادہ دے۔ لیکن وہ ایسا نہیں کر پاتا کیونکہ جب تک وہ اپنے خاندان پر چیف سے لیا گیا قرضہ اتار نہیں دیتا۔ اور مسئلہ یہ آ کہ انہیں اپنا جڑا چیف آ، اپنا مینیجر آ، وہ کو پیسے لائے ہوئے آ، قرضہ لیا ہوا یا قرضہ لے کے کار والے نے دیتا ہے، تے گھر والوں کو جو قرضہ دیا گیا ہے اس سے لے کر جتنی دیر تک وہ قرضہ نہیں اتارتا، وہ ملازمت سے اس کی جان چھوٹ نہیں سکتی۔ یہ انگریزوں کی یہی پرابلمز ہوتی ہیں، ان کی زندگی جو ہے وہ ساری کی ساری اچھے گھروں میں رہتے ہیں، اچھی گاڑیاں استعمال کرتے ہیں، یہ ساری کی ساری قرضے پر ہوتی ہے اور ساری زندگی یہ قرضہ اتارتے ہی رہ جاتے ہیں۔ ڈیتھ آف اے سیلز مین، اسی میں ہمیں یہ چیز دکھائی دیتی ہے، ولی لومن والی، کہ ساری زندگی وہ گھر کے خرچے اور گھر کا کرایہ بھرتے
घर का मॉर्गेज भरते, यानी जो कर्जा लिया था, कर्जे पर घर लिया था, सारी ज़िंदगी गुजार देता है और जब वो मॉर्गेज पूरा हो जाता है तो उसकी डेथ हो जाती। गिरकर उठकर अपने काम पर जाना चाहता, लेकिन अचानक इसको महसूस होता है कि वो तो पहले ही बहुत देर हो गई है। कहता कि उठा मैं काम ते जावां, लेकिन देरी ही नहीं हो गई है कि वो किस तरह जावे, क्योंकि अलार्म ना बजने से वो सोता रह गया। अलार्म नहीं बजा जो इसने लगाया था। वो एक ज़िम्मेदार मुलाजम है, बड़ा रिस्पॉन्सिबल पर्सन है। पिछले 5 सालों में इसने एक दफ़ा भी छुट्टी नहीं की। 5 साल लगातार सुबह 4 से शाम 6 बजे तक जो है वो इसी तरह सफ़र करते गुजारते। यही वजह है कि इसकी वालदा इसको काम पर भेजने के लिए उठाने आती है। अब अलार्म बजा नहीं, उसने 5 सालों में कभी छुट्टी की नहीं, ठीक है। अब वो उठा नहीं तो घर वाले परेशान है। उसकी माँ जो है गिरगर की वालदा उस दरवाज़े पर आती है, उसको आवाज़ देती है, जिसका वो जवाब देता है। इस दौरान वो महसूस करती है कि इसकी आवाज़ तब्दील हो गई है। वो महसूस करता है कि इसकी आवाज़ तब्दील हो गई है। गिरगर के वालिद और इसकी छोटी बहन ग्रीट महसूस करते हैं कि वो अभी तक घर पर ही है। वो इसके कमरे में दाखिल होने की कोशिश करते हैं। अब बात यह है कि इंसान की आवाज़ और एक बग की आवाज़ में फ़र्क होता है। अब वो जैसे मर्ज़ी उनको जवाब दे, वो उसकी माँ, उसकी बहन, उसका बाप उसकी आवाज़ को समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि वो एक बग की, एक इंसेक्ट की आवाज़ है, तो वो कैसे समझ पाएंगे। लेकिन इसने दरवाज़ा अंदर से बंद किया है। अब वो दरवाज़ा भी नहीं खोल सकते। वो कहते हैं पता नहीं कोई मसला है, बीमार है। अब ये अंदर से इसने दरवाज़ा लगा कर सोया हुआ है, तो अब ये बग में चेंज हो गया है, कीड़े में चेंज हो गया है। तो अब वो बड़े परेशान हैं, उन्हें पता भी नहीं है। उन्होंने कहा कि बीमार होगा, अंदर से दरवाज़ा बंद किया है, तो अंदर अब कैसे दाखिल होंगे। गिरगर अपने बेड से नीचे उतरने की कोशिश करता है, लेकिन इसको बहुत मुश्किल पेश आती है। बड़ी मुश्किल से नीचे उतरता है। इसको इस चीज़ का एहसास होता है कि अब बहुत देर हो गई है, लिहाजा वो वापस अपने बिस्तर पर लेट जाता है। पहले नीचे उतरता है कि मैं तैयार होता हूँ, मैं जाता हूँ काम पर, फिर दोबारा लेट जाता है कि भाई दफ़ा मारो, बड़ी लेट हो गया, कल सही हूँ, दफ़ा मारो, आराम करते हैं। और उम्मीद करता है कि कोई वाज़ेह तरकीब सोच इस मुश्किल का हल निकालने में मददगार होगी। अब सोचता है कि कौन सी तरकीब सोचूं, कैसे बहाना करूं छुट्टी का। अचानक घर के दरवाजे की घंटी बजती है। दरवाज़ा कोई नॉक करता है बाहर दरवाजे पर, और चीफ क्लर्क जो है वो होता है, जो नॉकिंग कर रहा होता है, वो घर में दाखिल हो जाता है। उसी कंपनी का, ट्रैवलिंग कंपनी का, जिसमें ये काम करता है। ये जानकर कंपनी ने खुद चीफ क्लर्क को इसके घर भेज दिया है, लिहाजा वह थोड़ा सा एक तरफ को लहरा कर बेड से नीचे उतरता है। कहता 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੁੱਟੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ भी चीफ क्लर्क ਨੂੰ मेरे घर भेज दिता कि जाओ ਉਹਨੂੰ ਲੈ के आओ। किथे चल गया। इस मौका पर तमाम ख़ानदान के लोग गिरगर को दरवाज़ा खोलने को कहते हैं। ख़ानदान की वही भैन, ਉਹਦਾ बाप, ਉਹਦੀ माँ, वही ख़ानदान उन्होंने, लेकिन वो इनकार कर देता है। इसकी वालदा मिसिस सैमसा कहती है कि यकीनन वो बीमार होगा, वरना वो कभी ऐसा नहीं करता। कहती वो बीमार होएगा, ਉਹਨੂੰ लेटा रहन दो, कोई नहीं, तो अगे तो कभी उन्हें ऐसा नहीं किया। इसकी वालदा मिसिस सैमसा कहती है कि मेरा, जैसे मैंने कहा, चीफ क्लर्क गुस्से में आ जाता है। गिरगर को कहता है कि इसको गिरगर के रवैये से बहुत दुख पहुंचा है। वो गिरगर को कहता है कि कंपनी, इसकी पोजीशन इतनी अच्छी नहीं है कंपनी में, क्योंकि इसका काम बहुत पुअर जा रहा है। वो अब दरवाजे के बाहर खड़ा है, गिरगर सैमसा के जो चीफ क्लर्क है, और वो दरवाजे के बाहर खड़े होकर बातें कर रहा है कि भाई तेरा काम सही नहीं हैगा, तेरी पोजीशन कंपनी सही नहीं हैगी, जे छुट्टी करूँगा तो तेनों कढ़ के बाहर मारनगे हो, तो तू जल्दी कर, तैयारी कर, तो चल कंपनी च। अब जनाब क्या होता है, वो गुस्सा करता है, गिरगर को गुस्सा आ जाता है। कहता है कि इस वक्त मामूली सा इनडिस्पोज्ड है। इनडिस्पोज का मतलब होता है अलील होना, बीमार होना, और जल्द ही वापस अपने काम पर आएगा। वो इस चीज़ की वजाहत करता है कि इसका काम इतना बुरा नहीं रहा। कहता कि भाई मेरा काम, मैं तो काम दे विच पुअर नहीं, मैं अपना काम बड़ी ईमानदारी नाल करदा, मैं काम करदा हाँ, लेकिन मैं अज थोड़ा जिहा ठीक नहीं हैगा तो मैं नहीं आ सकदा। लेकिन गल यह कि उन्हां तक इहदी आवाज़ किस तरह जाएगी, वो तो बग आ, उन्हां नूं नहीं सुनेगा की कह रहा आ। चूँकि गिरगर की आवाज़ बहुत सारी तब्दीलियाँ वाकई हो गई हैं, लिहाजा दरवाजे के बाहर मौजूद कोई भी शख्स इसकी बात को बिल्कुल समझ नहीं पाता। ठीक है,
इस खौफ से कि वो कहीं वो बीमार ना हो, इसके वालिदैन इसकी बहन ग्रीट और नौकरानी को घर डॉक्टर को बुलाने के लिए भेज देते हैं। ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਗਰੀਟ ਔਰ ਇੱਕ ਨੌਕਰਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਜਾਓ ਭੱਜ ਕੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਬਿਮਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਆਵੇ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਆਪਾਂ ਭੰਨੀਏ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੇ। देखे कि मसला आया, सुता ही ना सो जाए किते। ग्लिगर इस हालत में देखकर चीफ क्लर्क ज़रा पीछे हो जाता है। अब जनाब होता क्या है, बहुत मुश्किल से मिलाकर जो है ग्रीगर खुद ही अब दरवाज़ा खोलने के काबिल हो जाता है। अब वो बिस्तर से उठता है, ग्रीगर जो है वो जो बग में चेंज हुआ है वो दरवाज़ा खोल देता है। ग्रीगर को इस हालत में देखकर चीफ क्लर्क दी तो मां ही मर जाती ना, परेशान हो जाता, पिछे हट जाता, घबरा जाता। जबकि इसका वालद रोना शुरू कर देता, बाप इहदा रोना शुरू कर देता। चीफ क्लर्क जिहड़ा इहनूं लैण आया सी वो घबरा के पीछे हो जाता। ग्रीगर चीफ क्लर्क से कहता है कि कंपनी में मेरी इस हालत के बारे में बता देना और मेरे लिए इनसे दरख्वास्त करना। वो कहता है कि वो बखुशी अपने काम पर वापस आ जाएगा। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖਦਾ ਤੂੰ, ਮੇਰਾ ਕੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ मैं वापस काम पे आ जाऊँगा। फिर क्या होता है, ग्रीगर का वालिद मिस्टर सेम्सा चलने वाली छड़ी उठाता ताकि ग्रीगर को वापस इसके कमरे में धकेल दे। अब वो एक छड़ी वॉकिंग स्टिक लेता है इसका बाप और उसे बाग में जो चेंज हो गया ग्रीगर सेम्सा उसे डंडे के साथ धकेलता है कि कमरे में वापस चला जाए। कैसा रवैया। ग्रीगर दरवाजे में फंस जाता है, वो धकेल कर दरवाज़ा लगा देते हैं ना, तो वो दरवाजे में फंस जाता है। इसका वालिद छड़ी से वापस कमरे के अंदर धकेल कर दरवाज़ा बंद कर देता है। अब जब वो दरवाजे में फंस गया, उसने धक्के दिए स्टिक के साथ, उसे धकेल कर अंदर दरवाजे को फिर लॉक कर दिया। ग्रीगर जो है शाम के वक्त उठता है, खुराक को सूंघता है। इसे एहसास होता है कि इसकी बहन जो ग्रीट है इसके लिए दूध में ब्रेड डालकर लाई। ये दूध और ब्रेड का बड़ा शौकीन था, लेकिन अब जो है ये ग्रीगर दूध पीने की कोशिश करता है। चूँकि अब वो एक इंसान नहीं है बल्कि इंसेक्ट है, लिहाजा इसको दूध का जायका बहुत अजीब महसूस होता। कहता यार ये चीज़ जड़ी मैनू बहुत पसंद सी, लेकिन हुण क्योंकि वो इंसान नहीं रहा है, चेंज हो गया, ट्रांसफॉर्म हो गया, मेटामॉर्फोसिस हो गया था, इस वजह तो उन्हें दूध अच्छा नहीं लग रहा। ग्रीगर ये नोट करता है कि अपनी रोज़ाना की आदत के बरक्स इसके वालिद मिस्टर सेम्सा घर वालों को ऊंची आवाज़ में अखबार पढ़कर नहीं सुनाते। मज़ीद ये कि घर में मुकम्मल सन्नाटा छाया हुआ है, यानी कि रौनक नहीं रही घर। ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਉਹਦਾ ਬਾਪ ਜਿਹੜਾ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀਗਾ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਜਨਾਬ ਜੀ ਚਹਿਲ ਪਹਿਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਸ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਹੁਣ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਬਾਪ ਔਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗ ਗਏ। वो चाहता है कि इसके घर वाले इससे मिलें, चाहता आ कि मैं ठीक नहीं हैगा, मेरी माँ, मेरी भैन, मेरा बाप मैनू आके पता करन, मेरा ख्याल करन। लेकिन दरवाजे को बाहर से ताला लगा हुआ। कैसी बेहिसी है। उन्होंने पता करने तो दूर की गल कि जेड़े कमरे दे विच ओह लेटिया होया आ ਉਹਦੇ बाहर ताला लगाता कि बाहर ना निकले, और कोई भी इसके कमरे में दाखिल नहीं होता, कोई नहीं जानता, कोई नहीं पता करता, कोई नहीं पूछता। गिलगर सोफे के नीचे छुप जाता है और जहां वो अपने आप को बहुत पुरसकून महसूस करता है, फैसला करता है कि इस मुश्किल सूरत हाल में इसको अपनी फैमिली की मदद करनी चाहिए। कहता है कि घर वाले परेशान आ, हुण मैं कमाउना सी, मैं भी जिहड़ा आ चेंज हो गया, बग च बदल गया, हुण मैं की कर सकदा। इसकी बहन ग्रीट इसके लिए मुख्तलिफ अक़साम का खाना लेकर आती है ताकि इसको पता चल सके कि ग्रीगर शौक से क्या खाता है। अब मुख्तलिफ काइंड्स के जो बचे कुचे खाने हैं वो लाती है कि ये बग जो है कौन सा खाना पसंद करेगा। वो इन तमाम चीज़ों को ऐसे ही फेंक देती है, अगरचे इसने इनको ख़त्म नहीं किया, हत्ता कि जिन चीज़ों का इसने हाथ भी नहीं लगाया होता, इन चीज़ों को भी वैसे ही फेंक देती है, फेंक के चली जाती। जब वो कमरे में दाखिल होती है तो वो अपने आप को सोफे के नीचे छुपा लेता है ताकि वो ग्रीट की नज़रों से बच सके। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਆ ਇਹਦੀ ਭੈਣ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਨਾ ਸਕੇ।
ये तसव्वुर करती है कि गरीगर इसको किसी बात को समझ नहीं पाता, इसके घर वाले इससे बात करना तरक कर देते। ना तो गरीगर की कोई गल उन्होंने तक पहुँचती है, ना उन्होंने गरीगर तक पहुँचती, या कम्यूनिकेशन स्किल जी जीरो हो। घर में होने वाले तमाम मामलात का अंदाज़ा इसको सिर्फ इनकी बातचीत सुनकर होता है। घर दे विच जिहड़ा शोर जिहड़ी बातचीत होंदी उहदे नाल, लेकिन ये उन्होंने गल नहीं कर सकता, वो इन्हों गल नहीं कर सकते। स्पीकिंग ख़त्म हो गई। इसको ये पता चलता है कि इसके वालिद के कारोबार से जमा की गई तमाम रकम खर्च हो गई, कि अब्बे दा जिहड़ा कारोबार सीगा उहदे विच जिहड़ी उन्हें पैसे कमाए सीगे, आस्ता आस्ता सारे ख़त्म हो गए। गिरीगर को इस रकम का अंदाज़ा नहीं था। जब 5 साल पहले इसके वालिद का कारोबार बिल्कुल ख़त्म हो गया था, तो इसने खुद ही अपनी फैमिली की जिम्मेदारी उठाने के लिए नौकरी कर ली। वो कहता है ये पैसे कित्थों आए जिहड़े इन्हां ने चंद एक दिनां दे विच इस्तेमाल कीते आ। मैं कर्जे लै लै के घर दा गुजारा चलाया आ, ते बाप मेरे दे हजे भी बचे हुए सी पैसे कारोबार च। अच्छा, तो मैं उन्होंने लिए नौकरी की थी, लिहाजा इसने अपनी फैमिली और घर की तमाम जिम्मेदारियां इस अरसे में बहुत अच्छे तरीके से पूरी की, लेकिन फैमिली इसकी इस कुर्बानी को बहुत जल्द भूल गई। उन्हें 5 साल हो गए दिन रात एक करके मेहनत की, कमाई की, घर वाले ने दी, लेकिन जैदा ही वो बीमार होया, नकारा होया, मुकम्मल फैमिली ने मुकम्मल तौर पर उन्होंने इग्नोर करना शुरू कर दिता। उहदियां कुर्बानियों को फौरन भूल गए। गिरीगर की सिर्फ एक ख्वाहिश थी कि वह अपनी बहन ग्रीड को वायलिन की तालीम दिलाने के लिए कंजर्वेटरी भेज सके। ये कंजर्वेटरी जो है ये मौसीकी की दरसगाह को कहते हैं। वायलिन वो बजाना चाहती है, मौसीकी का एक आला है, तो उसके लिए वह अपनी बहन को मौसीकी की तालीम दिलाने के लिए मौसीकी की दरसगाह भेजना चाहता है, और पैसे जोड़ रहा है कि मैं अपनी बहन को ये कोर्स करवाऊँगा। गिरीगर अपनी तमाम हरकत को बगौर देखता है, क्योंकि मामूली सी आवाज़ भी इसके घर वालों की तवज्जो अपनी तरफ राग़िब कर लेती है। इसकी बातचीत इसको पता चलता है कि अपने कारोबार के अलावा कुछ रकम इन्होंने इसकी तनख्वाह से भी बचा रखी। हुण उन्होंने अंदाज़ा होया कि सिर्फ बाप दे पैसे नहीं सके कारोबार वाले जमा कीते है, बल्कि इहदी तनख्वाह चों भी उन्होंने पैसे जोड़ जोड़ के रखे सी कि मुश्किल टाइम दे विच आपां इस्तेमाल करांगे। लेकिन ये तमाम रकम इतनी नहीं है कि काफ़ी अरसा तक चल सके, लेकिन ये रकम इतनी नहीं हैगी कि बहुत लंबे अरसे तक इसको गुजारा करें। हर दफ़ा जब रकम का जिक्र आता है तो वो बहुत शर्मिंदगी महसूस करता है। इसको एहसास होता है कि इसकी नज़र अब इतनी बेहतर नहीं रही, क्योंकि वो गली की दूसरी जानब भी नहीं देख पाता। हुण आहिस्ता आहिस्ता उसकी नज़र जिहड़ी है ना वो गिरनी शुरू हो गई है, नज़र कमज़ोर होने शुरू हो गई है। हर दफ़ा जब ग्रीड कमरे में आती है तो वो खिड़की को खोलने के लिए भागती है। जो कमरे च आउंदी है खिड़की नूं खोलने भागदी है। ये चीज़ गिरीगर नूं बहुत परेशान करती है, ये महसूस करते हुए कि इसकी बहन इसकी मौजूदगी में परेशान दिखाई देती है। लिहाजा वो इसकी नज़र से ओझल रहने के लिए हर दफ़ा अपने आप को एक चादर से ढांप लेता है। इसके वालिदैन कभी भी इस कमरे में नहीं आते। जब वो इसकी वालदा अपने बेटे से मिलने की ख्वाहिश का इज़हार करती है तो बाकी के घर के अफराद यानी इसका शौहर बेटी से बाज रहने का कहते हैं। सिचुएशन है बेचारे ना। गिरीगर ये दरियाफ़त करता है कि अब इसको दीवारों छतों पर रेंगना अच्छा लगता है। अब बिस्तर पर लेटने की बजाय दीवारों और छतों पर वो रेंगता है, और यही उसे अच्छा लगता है। इस चीज़ को देखते हुए ग्रीड इसकी खातिर कमरे के फर्नीचर को उठाने का बंदोबस्त करती है, ताकि इसे चलने फिरने के लिए मज़ीद जगह मिल सके। वो क्या कहती है कि वो इसके कमरे में जो फर्नीचर है ना, इसकी बहन वो उठा लेती है कि आसानी के साथ जहाँ चाहे घूमे फिरे। इस काम के लिए वो अपनी वालदा से मदद करने का कहती है, लेकिन इसके वालदा का ये कहना है कि फ़र्नीचर बाहर निकाल देने का मतलब है कि हम ग्रीड की सेहतयाबी की उम्मीद तर्क कर चुके हैं। कहती फ़र्नीचर पड़ा रहने दो, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर हम फ़र्नीचर निकाल रहे हैं तो हम ये कह रहे हैं कि इसने सारी ज़िंदगी ऐसा ही रहना है। लेकिन ग्रीड अपनी वालदा की बात से मुतफिक नहीं होती अपनी, लेकिन उसदी भैन जिहड़ी गिरीगर दी मुतफिक नहीं होंदी, उसदी गल नहीं मानदी। ते और ग्रीगर को इस फर्नीचर की अहमियत का अंदाज़ा होता है। उस तो बाद उन्हें इस फर्नीचर की अहमियत का अंदाज़ा होंदा आ कि अच्छा ये फर्नीचर का मतलब ये आ कि जितनी देर तक फर्नीचर पिया है इसका मतलब आ कि मेरी अहमियत है, मेरे समझ रहे हैं कि मैं चेंज हो सकता। लेकिन जो मेरे घर वाले ने मेरे को सारिया चीज़ां ही खोल लैनियां, इसका मतलब है कि मेरे घर वाले कोल कोई। लिहाजा अब वो छुपने की बजाय दीवार पर लगी
औरत की तस्वीर को हटाने से बचाने के लिए बाहर आता है ताकि वो इस तस्वीर को भी वहाँ से निकाल ना सकें। सारा कुछ तो उन्होंने कढ़ लिया, एक तस्वीर रह गई एक औरत की ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਇਹ ਨਾ ਕੱਢਣ, ਉਹ ਬਾਹਰ आ ਜਾਂਦਾ नहीं। वालदा बेहोश होकर की और इसी के लिए वो भागती है दवाई लेने के लिए और उसे ग्रीगर बाहर ही रहता है और ये उसके कमरे में खुद जो है वो आ जाती है दरवाजे को। ग्रीगर कमरे के बाहर है, इसका वालिद इस कमरे के बाहर खड़ा देखता है, इस पर सेबों से वार करना शुरू कर देता है। इनमें से एक सेब ग्रीगर की पुश्त पर फिक्स हो जाता है जिससे वो तकरीबन अब लंगड़ा कर चलना शुरू कर देता है। ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਬਾਪ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਕਮਰੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਭੈਣ ਉਹਦੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹਨੇ ਤਾਲਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਲੌਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਮਰੇ 'ਚ ਨਾ ਵੜੇ। ਮਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਈ, ਗਿਰ ਗਈ। ਅਬ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਬਾਹਰ ਆ ਅਤੇ ਬਾਪ ਉਹਦੇ ਨੇ ਸੇਬ ਫੜੇ ਆ ਅਤੇ ਸੇਬ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਖਟਮਲ ਪਿੱਸੂ ਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਪ ਨੇ ਸੇਬ ਫੜੇ ਅਤੇ ਸੇਬ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਫੇਦਾਂ। ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਸੇਬ ਉਹਦੇ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆ, ਵਿਚਾਰਾ ਲੰਗੜਾ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉੱਠਦੀ ਆ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਤੋਂ ਹੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਆ ਔਰ ਇਲਤਜਾ ਕਰਦੀ ਆ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਹਰ को कि ना मेरे पुत्र ਨੂੰ ना मार। ग्रीगर का ज़ख्म इसके घर वालों को इसे कबूल करने का सबब बनता है। अब वो ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ तो फिर थोड़ा ਜਿਹਾ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ थोड़ी ਉਹਦੇ ਲਈ ਹਮਦਰਦੀ ਆ। अब वो इसका कमरा खुला छोड़ देते ताकि इसको देख सकें। ज़्यादातर खामोश ही रहते हैं और अपनी नई नई मुलाजमत की वजह से काफ़ी थकावट का शिकार रहते हैं। सारे मुलाजमत करन लग पए आ, ਭੈਣ ਵੀ, ਬਾਪ ਵੀ, ਮਾਂ ਵੀ। ਕਮਰਾ ਇਹਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੱਡਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਰਹੀਏ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇ। इन्होंने घर की मुलाजमत की बजाय एक बूढ़ी औरत घर की सफाई के लिए पहले एक लड़की रखी सीगी, हुण घर का खर्चा नहीं इन्ना अफोर्ड कर सकते तो हुण एक बूढ़ी औरत नूं रख लिया कि थोड़ा बहुत सफाई वगैरह कर देंदी। घर में अब कोई भी इनकी परवाह नहीं करता, इसकी परवाह नहीं करता। ग्रीगर अपने कमरे में माजी की यादों में खोया रहता है। इस बात पर बहुत गुस्सा आता है कि इसके घर वालों ने इसे नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया। वो बहुत हर्ट होंदा कि घर वाले इनू पुछदे दसदे नहीं, कोई दी केयर नहीं करते। अब कभी कभार ही ग्रीट इसकी कमरे की सफाई करती है और इसकी खुराक का भी कोई खास ख्याल नहीं। ना होने दे कमरे की कोई सफाई करता, ना इनू खुराक देन आउंदी है क्योंकि वो कम करने लग पई। इसकी वालदा ग्रीट की अदम मौजूदगी में घर की सफाई की कोशिश करती है तो घर में इस बात पर लड़ाई शुरू हो जाती। ਹੁਣ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਖਾਮਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਲੈ ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਆ, ਲੜਾਈ ਕਰਦੇ, ਖਬਰਦਾਰ ਤੂੰ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਦੀ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ। दूसरी तरफ घर में सफाई करने वाली औरत जो है वो ग्रीगर को देखकर नफरत का इज़हार नहीं करती बल्कि इसके साथ हंसी मजाक करती, जिसका वो हरगज़ गुस्सा नहीं करता। घर में 3 किराएदार अब लॉजर्स जो हैं घर में आ गए हैं। एक कमरा अब उनके लिए खाली करना पड़ा है और जो स्टोर है उसमें जितना स्टोर वाला कमरा उन्हें देना है, वो जितना सामान वहाँ पड़ा है, कूड़ा करकट जो इस्तेमाल शुदा चीज़ें, अब वो ग्रीगर के कमरे में लाकर ठोंस देते हैं, जिसकी वजह से अब इसके चलने फिरने के लिए वो कम जगह बाकी रह गई है। इसने कुछ खाना पीना तकरीबन बिल्कुल खाना वो नहीं खांदा, तुरना फिरने तो वो बेचारा रह गया। ਜਿਹੜਾ कचरा सारा ਉਹਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਮਰੇ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੰਦ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਲੌਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ 3 ਜਣੇ ਆਏ ਆ ਉਹ ਕਿਤੇ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਡਰ ਨਾ ਜਾਣ, ਭਾਗ ਨਾ ਜਾਣ। ग्रीगर इस बात का ख्याल नहीं रखता कि बल्कि जब भी इसको मौका मिलता है वो कमरे से बाहर निकल आता है। ਉਹ ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ ਕਰਨ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਖੁਦ ਹੀ ਉਹਨਾਂ को ਜਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ क्योंकि ਇੱਕੋ ਕਮਰੇ 'ਚ ਰਹਿ नहीं ਹੁੰਦਾ। दूसरी तरफ वो किराएदार ग्रीगर के वालदैन से बहुत खिदमत करवाते हैं। उन्होंने नौकर बना लिया वालदैन ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ नौकर आए आ किराएदार आए आ। जब ग्रीट अपने वायलिन बजा रही होती है, मशक कर रही होती है, वायलिन बजा रही होती है तो ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਸੁਣਾ। ਜਦੋਂ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤਾਹਤ ਦਾ ਬਾਇਸ ਤਾਹਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਤੈਨੂੰ ਵਾਇਲਿਨ ਨਹੀਂ ਬਜਾਣੇ ਆਉਂਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਦਫਾ ਮਾਰ। दूसरी तरफ ਜਿਹੜਾ ग्रीगर आ इस मौसीकी को की तरफ खींचा चला जाता है और मज़ीद नज़दीक आने के लिए अपने कमरे से बाहर निकल आता है। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮੌਸੀਕੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਤਾਸਰ ਹੁੰਦਾ ਆ और ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ लगता वो सोचों में है ग्रीट को वायलिन बजाने के लिए कंजर्वेटरी जो है वो भेजने के मनसूबे से आगाह करता है। वो जहन 'ਚ सोचਣ ਦਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨਾ ਸੋਹਣਾ ਵਾਇਲਿਨ ਵਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੌਸੀਕੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਨਾ ਦਰਸਗਾ ਉੱਥੇ भेज देना चाहिए ताकि माहिर हो जाए। अभी इन सोचों में गुम होता है कि इनके किराएदारों की नज़र इस पर पड़ जाती है। वो वायलिन की आवाज़ मौसीकी सुनते सुनते इदा जिदा भैन ਉਹਦੇ ਲਈ ਵਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ, ਉਹਦੇ ਕਰੀਬ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਖੌਫਜ਼ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਚੀਖਣਾ ਚਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ।
बाद में घर वालों से कहते हैं कि वो घर छोड़ रहे हैं, जितने दिन यहाँ रहे इसका किराया भी अदा नहीं करते, बगैर किराया ਦਿੱਤੇ कुछ भी वो घर ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ हैं। इस मौका पर गिरीट आगे बढ़ती है और अपने वालदैन ਉਹ ਭੈਣ ਜਿੰਨਾ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਅੱਗੇ बढ़ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੇ ਗਰੀਬਗਰ ਸੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਨ ਛੜਾਓ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰੋ ਪਰ ਦਫਾ ਮਾਰੋ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਫਤ ਜਈ। ਇਸ ਬਾਪ ਆਖਰਕਾਰ अपने वालदैन को राज़ी कर लेते, मान जाते, कहते ठीक है इन्हू कड्डो बाहर। दूसरी तरफ गिरीगर को मुखातब होकर कहती है कि किराएदारों के जाने से इन्हें माली नुकसान उठाना पड़ा है जिसकी जिम्मेदारी गिरीगर पर आयद होती है। कहते एदी वजह तो गिरीगर की वजह तो किराएदार किराया देते बगैर छड़ के घर चले गए। अगर वो वाकई गिरीगर है तो इसे चाहिए कि वो इन पर बोझ ना बने, खुद ब खुद यहाँ से चला जाए और इन्हें अमन और सुकून के साथ ज़िंदगी गुजारने दे। वो कहती भाई अगर तू वाकई साडा भरा आ तो दफा या घर छड़ के चल जा, सानू सुकून नाल ज़िंदगी बसर करने दे, तू कि साडे ते बोझ बने आया। अचानक इसको एहसास होता है कि इसके दिल में भी अभी ख़ानदान के लिए मोहब्बत नरमी के जज्बात पाए जाते हैं। वो समझता है कि गिरीट बिल्कुल ठीक कहती, कहता उन्हें सही किया आ, मेरे जज्बात है अपने घर वालियां दे नाल ते इसका अच्छा आया कि मैं चले जावां। इसको गायब हो जाना चाहिए। वो अपने कमरे में वापस चला जाता है, सूरज के तलू होने पर फोत हो जाता है। कमरे वापस जाता तो सूरज तलू होने तो पहले वो मर जाता। गिरीगर के घर वाले खुश हैं लेकिन साथ साथ इसकी वफात पर जाने पर कुछ अफसोस भी है। थोड़ा अफसोस है लेकिन वो खुश है कि चलो जान छुट्टी बीमारी गई। तो वो खुद तमाम काम से छुट्टी करके तफरी के लिए निकल पड़ते हैं। उन्होंने सुकून का सांस लिया, चलो बीमारी यही ये आफत घरों निकली। अब सुकून का सांस लेते हैं, मुस्तकबिल इनका रोशन दिखाई देता है कि मुस्तकबिल ਹੁਣ ਸਾਡਾ रोशन आ, सारे कमाई कर रहे हैं। वो ਜਿਹੜਾ बीमार सी वो मर गया, दफ़ा हो गया, निकल गया। वालदैन ये देखते हैं इनकी बेटी अब बड़ी हो गई है, उन्होंने कहा हुण बेटी साड़ी जवान हो गई है, ਇਹਦਾ फैसला करते हैं, शोर की तलाश करते हैं। अपने ट्रिप के इख्तिताम पर वो सब से पहले खड़ी होती है, सारे बैठे होंगे इंजॉय कर रहे होंगे, खड़ी होंगी है, खड़ी होकर अंगड़ाई लेंदी है, स्ट्रैच करती है यानी अंगड़ाई लेंदी है और इत्थे नावल का इख्तिताम हो जाता।